बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इकराम गैलेक्सी चैनल के साथ हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ। आज हम आपको ले चलते हैं आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान, जहां तकरीब इजरा है अनवार अहमद की तसनीफ़, उनकी किताब कुछ खाके कुछ बातें, उसके बारे में लोगों का सारा ख्याल। سبحان ربك رب العزة عما يصفون. جناب قاری وقار قادری صاحب لہجہ اجیت میں آپ کو مستفید فرما رہے تھے تلاوت کلام پاک سے. لہجہ اجیت وہ ہے جو مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ میں جب تلاوت ہوتی ہے تو اس لہجے میں ہوتی ہے. ماشاءاللہ بہت خوب آپ نے پڑھا. میں وقاص احمد سے گزارش کروں گا کہ تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل ہے. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. اقبال لطیف صاحب سے گزارش کروں گا کہ آج کی بزم کے صاحب صدر ڈاکٹر عقیل عباس جعفری اور صاحب کتاب جناب انوار احمد صاحب کو اسٹیج پر رونق ڈاکٹر ہونے کی دعوت. میں گزارش کروں گا محترمہ عبدالبانو صاحبہ سے کہ اسٹیج پر ہونا مفروض ہوں. جناب اقبال اے رحمان سے گزارش ہے کہ اسٹیج پر ہونا مفروض ہوں. میرا جامی صاحب جیسے ہی داخل ہوئے میں ان کو فوراً بلوا لینا ہے. آ جائیے. آپ ہی کا انتظار تھا. میرا جامی صاحب ہمارے پرانے رفیق کار بھی ہیں اور آج کل بز میں تقریب ادب کے روح رواں کرتا رکھا اور اس کتاب کے پبلشر بھی وہی ہیں. شکور پٹھان صاحب اگر تشریف لا چکے ہیں کمیٹی کے بہت اہم رکن اور کوآرڈینیٹر جناب طاہر احمد آغائی صاحب سے گزارش کروں گا کہ اوپر تشریف لائیں. اور محترمہ ریحانہ روحی صاحبہ سے درخواست گزار ہوں. ابھی مجھے نہیں نظر آ رہی تھی. آپ کی نظر اسٹیج کے موجود ہیں اور ہمارے سارے مقررین بھی ہمارے سامنے ہیں. تو ہم سب سے پہلا کام ایک تو طالب بھائی اتنا خوبصورت سا بہت اچھا سا کیک لے کر آئے ہیں اس تقریب رنمائی کے لیے اور یہ شیٹ بھی موجود ہے. تو طالب بھائی کا حکم تھا کہ یہ کیک کٹنگ سیریمنی جو ہے یعنی
کشید کیک پہلے کر لیا جائے تو ہم اس کو کشید کرتے ہیں اور پھر لوگوں تک پہنچائیں گے بھی، اور اس کے ساتھ ہی ہم رونمائی کی تقریب کریں گے جس میں تمام مہمان یہ کتاب ہاتھ میں لے کے کھڑے ہوں گے اور ایک فوٹو بن جائے گا. اس طرح سے رونمائی پہلے کتاب کی تقریب کر لیتے ہیں. فوٹوگرافر حضرات سے درخواست ہے، محسن جمال جو موجود ہیں ان سے میں درخواست کروں گا حضرت اکرم کی کتاب لے لیجیے اور ذرا سا کھڑے ہو جائیے تاکہ ایک فوٹو بن جائے. ایسے موقع پہ شاید تالیاں بجا کریں. ایک فوٹوگرافر ریکارڈ کے لیے ضروری ہے. اور طاہر صاحب کو چھری کس کے پاس خوبصورت کیک بنوا کے لائے ہیں طاہر بھائی. انہوں نے کتاب لکھی، طاہر صاحب نے کیک میں کتاب کو کٹوا دیا. کتاب کا سال بھر بس بات صاحب جو ہے نا آگے ٹھیک، بس اب ذبح کر لیجیے. یہ خواتین کے پاس ہوتی ہے چھری، تو یہ چھری پیش کرتی ہے. اور اس کی انوار صاحب، جعفری صاحب، خواتین کا یاد دلا کے کیا 56 چھری یاد دلا آگے ہو گیا. یہ لیاقت کیک لے جائیے. یہ جب کھانا ہو جائے گا اس کے بعد میں آپ سے پہلے ایسس کر دیجیے. نہیں وہ اس کو کھانے میں لگ جائے گا. کتاب مہمانوں سے درخواست ہے کہ نشست میں تشریف رکھیں. تو پبلشر سے پہلے آرٹس کونسل آف پاکستان کراچی کی لائبریری کمیٹی نے اس کا انعقاد کیوں کیا اور کیا اس کے پس منظر میں محرکات رہے، اور آرٹس کونسل آف پاکستان کراچی کی لائبریری کمیٹی کی دیگر ایکٹیویٹی جو سال ہر سال چلتی رہتی ہیں اس کے حوالے سے، اور تمام مہمانوں کو باقاعدہ آفیشلی آرٹس کونسل کی طرف سے خوش آمدید کرنے کے لیے لائبریری کمیٹی کے چیئرمین اور ہمارے آرٹس کونسل کے سینئر ممبر جناب اقبال لطیف سے درخواست گزار ہوں کہ مائک پہ تشریف لائیں. جناب اقبال لطیف. خاطر حضرت، کیونکہ ہمارے پاس مہمانان گرامی بھرپور تعداد میں تشریف لا چکے ہیں، کچھ مہمان ٹریفک میں پھنسے ہوئے ہیں، لیکن میں کچھ کہنے سے پہلے شکر گزار ہوں اپنی بہت اچھی بہن، ایک بہت اچھی شاعرہ، ادیبہ، ہماری آرٹس کونسل کی جوش مری آبادی لائبریری کی سیکرٹری متمم، اور یہاں انہیں کسی اور تقریب میں بھی جانا ہے، لیکن ہماری اور انوار صاحب کی محبت اور کتاب سے ان کی دلچسپی اور محبت ہے کہ یہاں تشریف رکھتے ہیں. میں چاہوں گا کہ آپ ان سب کو تالیاں بجا کے فاطمہ حسن صاحبہ کو خوش آمدید کریں. انہوں نے درخواست کی تھی کہ میں کیونکہ جانا ہے لہٰذا میں اسٹیج پر نہیں بیٹھوں گی. ہمارے کوآرڈینیٹر طاہر آغائی صاحب نے بھی کسی ایک تقریب پہ جانا ہے، جو لہٰذا ان کی جو فرمائش تھی وہ پہلے پوری کر دی گئی. ہم ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ اپنے دوستوں کی فرمائشیں پوری کریں، لیکن آپ کی جگہ جو ہمارے دوسرے کوآرڈینیٹر ہیں اکرام صاحب، اکرم صاحب، وہ تشریف رکھیں گے اسٹیج پہ. خواتین حضرات، لائبریری کمیٹی آرٹس کونسل پاکستان گزشتہ 2 سال سے یہ میری ذمہ داری ہے، اور میرے پاس ایک اور دوسری کمیٹی بھی ہے
आर्टिस्ट लाइजन कमेटी, दोनों कमेटियों के मकासद आर्ट, कल्चर, अदब, फ़नून, सकाफ़त की तरक्की और आर्टिस्टों की फलाह, इन तमाम कामों की जिम्मेदारी मुझे अहमद शाह साहब ने सुपुर्द की। अब मैंने किस तरह क्या किया ये तो आप जानते होंगे, आप हमारे प्रोग्राम देखते रहते हैं, लेकिन आज के प्रोग्राम की वजह करने की सिर्फ अनवार साहब की मोहब्बत नहीं है, बल्कि एक ऐसी किताब जिसको अभी तक मैंने सरसरी तौर से देखा है। मैंने इतनी सलीस, इतनी आम फहम और इतनी बराह रास्त लिखी हुई गुफ्तगू और बराह रास्त लिखी हुई तहरीर बहुत कम खाकों और बातों में देखी हैं जो मुसन्निफीन लिखते हैं। अनवार साहब तहजीब के एतबार से हिंदुस्तान के तहजीब व तमद्दुन के एक बड़े मरकज़ लखनऊ से ताल्लुक़ रखते हैं। इनके ख़ानदान ने लखनऊ से मुख्तलिफ़ जगहों पे हिजरत की और उन खौफनाक इदारों से भी इनके बुजुर्गों का ताल्लुक़ रहा जिससे आजकल हम गौर करते हैं, जिसे महकमा पुलिस कहा जाता है। लेकिन उसकी वजह से इन्हें हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों की तहजीब, तमद्दुन सीखने, देखने और मुशाहिदा करने का मौका मिला। मुझे इस किताब को सरसरी तौर पर पढ़ा है, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि इसके 2 हिस्से बाकायदा होने चाहिए थे, लेकिन क्योंकि अनवार साहब कलम बर्दाश्ता लिखते चले गए तो ज़्यादा उनको तकसीम करने का इन्हें मौका नहीं मिला। इनका एक हिस्सा किताब का उन बुजुर्गों, रिश्तेदारों, आइज़ा अक़रबा, वालिद मोहतरम, वालदा मोहतरमा, बहन भाइयों, दोस्त अहबाब के सवानही खाके या उनसे ताल्लुक़ के दौरान जो कुछ हुआ, जो कुछ उनसे मिला, जो कुछ उन्होंने उनके लिए किया, उन सब की तहरीरें हैं। कमाल ये है कि हम जब ये किताब पढ़ रहे होते हैं तो एक नावल का गुमा होता है कि एक कहानी है जो अनवार साहब की पैदाइश से लेके मुख्तलिफ़ जगहों पर मुलाज़मतें सऊदी अरब में और मगरबी ममालिक में मुख्तलिफ़ उनके काम करने की सारी कहानी हम तक पहुँचती है। और उसके साथ साथ जो सबसे बड़ी अहम बात यह है कि उन बुज़ुर्गों ने इन्हें तहजीब व तमद्दुन की जो राहें दिखाई हैं, इतनी सलीस, इतनी सुस्ता और इतनी सच्चाइयों के साथ उन्होंने तहरीर की है कि इसमें खाकों की बजाय मुझे एक कहानीकार की ज़्यादा कोशिश नज़र आती है। इसके लिए मैं अनवार साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ, लेकिन मैं अपनी आसानी के लिए उसको तकसीम इसलिए करता हूँ कि अनवार साहब की तहरीरों से मैं थोड़ी बहुत अंग्रेज़ी जानता हूँ, तो डॉन में इनके मज़ामीन, इनके कॉलम्स में पढ़ता था और सोचता था कि ये शख्स उर्दू में क्यों नहीं लिखता। तो इस किताब के ज़रिए मुझे पता चला कि इकबाल साहब अपने कंप्यूटर पर अंग्रेज़ी में खूब लिखते थे। किसी ने इनको कहा कि जी आप ये रोमन में लिखते हैं तो इसको कुछ आप तब्दील नहीं कर सकते। उनकी फरमाइश पर इन्होंने उर्दू डाउनलोड की कीबोर्ड, और उसके बाद किताब गवाह है कि 300 से ज़्यादा मज़ामीन उन्होंने उर्दू में लिखे, छपे और मकबूल हुए। मुअज़्ज़िज़ मेहमानान गिरामी और हाज़िरीन महफ़िल, अस्सलाम वालेकुम। मुझे बतौर नाशिर मौजूद किया गया है, मगर इस किताब के अलावा भी अनवार साहब से ताल्लुक़ है। तो जब मैं एक किताब की रुनमाई के लिए जब मुझे मुकदम किया गया तो मैंने कहा एक छोटी सी तकरीर लिख लूँ, बल्कि तहरीर लिख लूँ, और उसमें मैंने इनकी किताब में जो अभी लतीफ़ साहब ने बताया कि कुछ और कई खाके हैं इन लोगों के ऊपर, मैंने एक फ़र्ज को चुना है और वो मैं आपके सामने पेश करता हूँ। बिलाखिर अनवार अहमद साहबी किताब बन गई। अनवार साहब की किताब कुछ खाके, कुछ बातें में 15 मज़ामीन तो उनके ख़ानदान के लोगों पर लिखे हुए
खाका नुमा हैं और बाकी सब मुतफरक़ात में आते हैं जिनमें समाजी, सियासी और माशरती मज़ामीन हैं, मगर इस किताब की शान नज़ूल उनके वालिद और वालदा की मरहूम मिन्नत है। अल्लाह तबारक ताला की एक ऐसी प्यारी हस्ती माँ है कि इस रब कदीर ने अपनी जन्नत माँ के कदमों तले रख दी है। ये और बात है कि औलाद को ये जन्नत माँ के कदमों के नीचे से मिलती तो है, मगर माँ के कदमों के नीचे से चप्पलें खाने के बाद। माँ का दर्जा अगर से सबसे अव्वल है, मगर इससे कुछ कम बाप का दर्जा भी नहीं है, क्योंकि इस दुनिया में आपका ज़हूर उसके सबब से है। इसलिए माँ और बाप का दर्जा एक तरह से मसावी है और औलाद को हुक्म दिया गया है कि अपने वालिदैन के साथ उतने सलूक से पेश आए। अंजुमन तरक्की उर्दू की हमारी साबिक सेक्रेटरी, हमारी अदब की सीनियर बहुत अहम नाम मोहतरमा फातिमा हसन, प्लीज़ तशरीफ लाएं और खिताब करें। साहिब सदर, साहिब किताब, स्टेज पर बैठे हुए सब मुक़र्रीन और बेहद फासिल और मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, आज की शाम बहुत खुशगवार है। इस ऐसी शाम से उठकर जाने का दिल तो नहीं चाहता, लेकिन एक और तकरीब यहाँ हो रही है जिसमें शिरकत ज़रूरी है, इसलिए मैंने ये कहा कि जो भी मैं मुख्तसर गुफ्तगू कर सकूँगी वो करके मैं रुखसत चाहूँगी। तो ये मैंने एक छोटी सी तहरीर जो मेरी है ये मैं पेश कर रही हूँ, बाकी कर्ज रही। खाका निगारी एक सिंफ है, अल्फाज में खाके बनाना उसी तरह है जैसे अल्फाज से रंगों का काम लेकर किसी शख्सियत की या किसी भी शय की तस्वीर कशी कर दी जाए और जिस पर लिखा गया है उस खाकों पर जो लिखने वाले हैं खाके, उनमें बहुत बड़े बड़े नाम हैं और हमारे यहाँ खाका निगारी की सिंफ को इसीलिए मकबूलियत भी हासिल हुई है कि उर्दू में बहुत अच्छे खाके लिखे। आप सबने उस माली का नाम ले, माली का खाका पढ़ा होगा, उसको अमल कर दिया उन्होंने अपने खाकों से। इसी तरह हमने देखा कि शाहिद अहमद दहलवी हैं, अख्तर रायपुरी हैं, डॉक्टर असलम फरूकी हैं और ये इसमत चुगताई ने जो अपने भाई का खाका लिखा है दोज़खी, तो ये सब हमारे अदब का एक बहुत बड़ा सरमाया है और मास्टरपीस है। और अभी हमारे हाल में जावेद सिद्दीकी साहब इस वक्त कराची आए हुए हैं बॉम्बे से, उनकी 2 किताबें रोशनदान और निगार खाना लंगर खाना आई है खाकों की, और ये बहुत ही कमाल के खाके लिखते हैं। तो ये खाका निगारी 2 हिस्से हैं, लेकिन बहरहाल इसके जो खाके हैं वो हमेशा खाके जो है वो पढ़ने वालों को ज़्यादा अपील करते हैं, क्योंकि उसको पढ़ने में लुत्फ़ आता है और उसमें हम ज़िंदगी को देखते हैं, रवायात को देखते हैं, अखलाकियात को देखते हैं, वक्त को देखते हैं, उस शख्स को देखते हैं जिस पर वो लिखा जा रहा है। और इस किताब में जो खाके हैं, अभी आपने वालिद का जिक्र सुना, वालदा का भी जिक्र सुना, कई अजीज़ों का जिक्र है, बहुत से अजीज़ों का, दोस्तों का जिक्र है, लेकिन मुझे जो खाका सबसे अच्छा लगा और वो उसमें एक कहानी जैसी कैफियत भी है, वो अव्वल भाई का खाका है, जो मुकम्मल एक कहानी है, खाके से ज़्यादा वो एक अफसाना। कुल बालों से तशरीफ लाएं, प्लीज़ बहुत सारी तालियां। वो सारी तो बात सामने कह रही, अब मेरे पास बजा ही कुछ नहीं है। बैठूंगी तो फिर भी नहीं, आपका ख्याल है। अच्छा सदर, आपकी वजह से असल में सदर साहब किसी वजूह की बना पर नहीं आ सके हैं, और इस वक्त मुझे ऐसा लग रहा है जैसे क्लास के जो शरीर से बच्चे होते हैं ना, उनको मॉनिटर बना के बिठा दिया है क्लास में, सब खामोशी से बैठे हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। अच्छा, सही बर्फ पर ये जुमला लिखा है, लिखते रहे जुनूं की हिकायत मुंजका। ये अपने अंदर कई दास्तानें समेटे हुए थे, जुनूं की हिकायत की कभी तकमील को पहुंची हैं,
हमारे मोहतरम दोस्त अनवार अहमद साहब का ताल्लुक लखनऊ से है, जहाँ के परवरदा लोग अपनी तहजीब और रिवायत से हमेशा जुड़े रहते हैं। लखनवी तहसीब में एक रचाव है। लखनऊ के लोगों के सुलझे अतवार, बाबर फैमिली और गुफ्तगू में शाइस्तगी का अक्स सामने वाले पर कुछ यूं सख्त होता है कि वो तारीर इस शहर से निकल नहीं पाता। आपके खानदान में बड़े बड़े अदबी लोग पैदा हुए। एक बड़े मारूफ शायर नाजिश प्रतापगढ़ी भी थे। अच्छा, हमारे अनवार साहब से हमारी शनासाई, ख्याल रहे कि बाबा जो हमने आशनाई नहीं लिखा, क्योंकि ये लफ्ज़ कुछ अच्छा तासुर नहीं छोड़ता, क्योंकि पुलिस वालों को भी ये फेवरेट है। अच्छा था, अनवर साहब से हमारी जान पहचान या वजह दोस्ती उनके लिखे जुर्रतमंदाना मज़ामीन थे। आपने तकरीबन हर मौजू को अपने ज़ेरे कलम किया, बल्कि नज़र कीपैड किया। तो कीपैड का ज़माना है,